Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I know it's been a little long time. I used to upload my videos on Sunday, but sometimes there is a need that has to be done. But first of all, I would like to wish you all a very, very happy new year. Hope you have enjoyed the 1st January, and I just wish you all the best to fill your rest of the 363 days with happiness, with fun, and may God give you all the strength to face your struggles. Yeah, because I know ki there has never been so easy for anyone to tackle anything. But yeah, you need the side of your parents, your family members, and God to like first is God, then parents who are the most important person. So, like after parents, if I say, then who would come? Like, if question is if you are in contact or you are watching an orphan children in front of your eyes, then how you gonna help them? Like, this is the question. Like, this is the winter season, and like you have seen many people, many parents who are working hard for their children to buy a blanket, or else many people are donating too. But what about them who have no parents and who don't know what to do as then rag pickers? Yeah, they have been trained to do rag picking, and then they have been trained to do begging. Like, yeah, there are many options for the children. If like people like us are not going to raise their voice, not going to do anything, then who else will? Yes, so we have to stand up. This is the time. And purposely I this is the intention of my video, which I'm going to show you in this whole video. But before that, I would really appreciate to the people who have joined me in the meeting, which I have shared the link of in Instagram, Facebook, everywhere, all the social media. And I would really appreciate that you have given me your precious time to listen to me. And I just think that like I don't think I just got the result that like my efforts didn't fail at all. So I'm really very grateful to those who are there and those who are not there, and who tried to be there. I would also appreciate your efforts. You left your works and you came to listen to me. So for you people, I just thought of recording a video. So here it is. Just go, enjoy, learn lesson, and do let me know in the comment section below that what all things I can do more to help people. Like, if you have any ideas, you can share with me. Those who are in connect with me on Instagram, they can share me frankly without any hesitation. I am like always open. You can share me your ideas. Yeah, and else you just watch the video, and if you want the link, you can DM me personally. I can give you. You can just leave the comment in the comment section. I will share you the link, and whatever you feel right, whatever you have the question, I am here to solve all your queries. So let's go and watch the video. हाय, किसी को आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। विवेक, किशी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है बेटा? ओके, Hi, good evening, Nadia. It's me, Vivek. Hi. गुड इवनिंग, हाय। अभी थोड़ा 5 मिनट्स और वेट कर लेते हैं पार्टिसिपेंट्स के लिए, तो फिर आगे फिर कंटिन्यू करूंगी। तो तब तक आप लोग मुझे ये बताओ कि ये कैसे हो सब कोई? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। बट फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया और आपने इस चीज को स्टार्ट किया है। सो आई रियली अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव। So, and थैंक being a girl यू। like you,
being you a girl, आपने इस initiative को लिया, this is really applaudable, seriously. थैंक यू हाँ सो पार्टिसिपेंट्स और भी ज्वाइन हो रहे हैं एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड कि माय वर्क इज बीइंग अप्रिशिएटेड Yes. ये ओके थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं तब तक मुझे आप लोग ये बताओ कि आप लोगों का न्यू ईयर कैसा रहा लेट्स स्टार्ट विद विवेक फर्स्ट विवेक आप बताओ आपका न्यू ईयर कैसा रहा मेरा न्यू ईयर तो मैं क्या ही बोलूं, मेरा न्यू ईयर तो मैं 31st भी नहीं सोया, फर्स्ट को भी नहीं सोया ऑलमोस्ट. आपको पता ही होगा हमारा इवेंट था, हैंगआउट का इवेंट था, तो जी जी काफी बिजी था मैं. और अच्छा था इवेंट, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था. लेट्स सी, वीडियोस देख के आपको पता चले कैसा था. जी जी रिव्यूज भी आपको मिल गए होंगे, ग्रुप में रिव्यूज भी मिल गए होंगे, तो लेट्स सी क्या था. और इस बार काफी लोग थे, मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 60 लोग थे, 50 to 60 लोग थे टोटल इन अराउंड. तो बहुत ही मैनेज करना बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट था, बट या ओवरऑल इट वाज ग्रेट. या आपका ओके कैसा तो था? हाँ सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है. ठीक है, ठीक है, और भी देखते हैं. चलो, अल्लाह हाफिज. हेलो, हेलो हाउ आर यू मदीहा? अच्छा ये बताइए आप लोग वुड इट बी कंफर्टेबल इफ यू स्विच ऑन योर वीडियोस This is not comfortable, beta. ओके नो प्रॉब्लम I ओके don't तो mind, but I don't mind. But हाँ okay, fine. विवेक आप कर लो, जिनको कंफर्टेबल लग रहा है आप प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लें. ओके तो मैं प्रेजेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कुछ बताना चाहती हूँ थोड़ा सा अबाउट विवेक जो कि सीईओ है हैंगआउट के एंड जो कि प्रेजेंटली हमारे पूर्णिया टाउन में एक प्लेटफॉर्म है वेयर ऑल दी पार्टिसिपेंट्स रिलेटेड लाइक अगर कोई सिंगर्स है डांसर्स है उनके पास जो भी टैलेंट है वो उनके पास जा करके परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज वट एवर ही डज वो पूरा अपने बेसिस पे करते हैं. एंड लेटली लाइक मैंने 25 दिसंबर फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था इन एन ओपन माइक जो कि जब मुझे पता चला था हैंगआउट के बारे में तो आई वाज वेरी प्लीज्ड. तो लाइक जो हमारे टाउन से है तो आई वुड से कि लाइक प्लीज गो विजिट चेक द इंस्टाग्राम पेज ऑफ हैंगआउट एंड लाइक यू विल लव इट फॉर श्योर. Thank you, thank you. This was surprising. या सो अब हम देखते हैं और कोई लाइक सो हु वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. कौन है यहाँ पे? एनीवन अप फॉर इंट्रोडक्शन? I could go. My name is Okay. Farah. I'm 17 years old. I am Madhi Hafi's cousin. I'm really excited to see what she is going to present to us today. So yes. Yeah, I'm very happy that all my cousins and my relatives are being a part of my presentation. I would really appreciate this. Okay. Wasim, I'm 31, unable to join. Okay, sorry to interrupt, Madhya. Okay, Yes. I have one question. Okay, I'm just surprised. Okay, why your best friend is not here? I'm astonished actually. Yeah, because she is having her class right now. I mean, Okay. there's no fixed time for her college. Okay. Yeah, so that's the problem. Otherwise, I would have killed her if she wouldn't be here. This is what I was asking. Okay, I mean, I can't see it. That's right. Okay. Okay, no problem. So, okay, I guess I should begin now. What say? Would you like to wait more or I should begin? Anything is feasible. Oh, I guess it's late. Let's begin with the small Madhya, start family. Yes, you can start, Madhya. Yes? Yeah, okay, I'm beginning.
Okay, so finally, this is about all my presentation of Muskurahat Foundation, where basically we are going to see about. Let me introduce you first with the video. Like, people would love if I represent them with the cinematic way rather than explaining them with the long story. So let's see here with the video. पापा कहाँ है? पापा मर गए। पापा नहीं है। नहीं, कोई नहीं जा रहे, हम वैसे भीख मांग रहे। बाप भाई नहीं है। भाई नहीं है? नहीं। एक भी भाई नहीं है? नहीं। तुम कितनी बहन हो? हम 6 बहन। 6 बहन हो? हाँ। और माँ क्या करती है? माँ भीख मांग। स्कूल जाती हो? नहीं। कितना पैसा हो जाता है बेटा एक दिन में? एक तो 100 रुपया। 100 रुपये क्या करती हो? 100 रुपये हम दिन से जाते हैं, हमें कोई बाप न खाए तो कुछ न खाते। हाँ? कुछ न 100 रुपये आ जाए तब कुछ न, 3 सब मिल जाते तब पैसा मांगते। अच्छा, शाम में उसी पैसा खाती हो? हाँ जी। Now let's watch this video. ओके, सब आप लोग मुझे ये बताओ कि फर्स्ट वीडियो हमने जो देखा दैट वाज क्वाइट इमोशनल, एंड सेकंड वीडियो जो हमने देखा दैट आई गेस कि सबके फेस पे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत स्माइल तो आई होगी ना. तो दैट्स द थिंग आई एम अप हियर विद. So in Muskurahat Foundation, what we basically do, we work as an NGO जिधर we take care of the orphanage, जिन बच्चों को like they have no idea about how to look at themselves. उधर हमारा NGO जो कि like different places में located है, अभी basically इसका main branch is in Mumbai. So what they do is they bring up back the children to their orphanage. They take care of themselves, and it has begun just around 5 years ago. तो ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है, and it's up the developing stage. तो let's see like how it began. मैं आप लोगों को ये पूरी lines नहीं बताऊंगी, but rather I would choose to show you through the video जिधर आपको clear हो like what how the our जो हमारे जो फाउंडर है, तो उन्होंने किस तरह से उनके दिमाग में आया दैट ही शुड ओपन एन एनजीओ, जो कि लाइक कॉमनली अगर हमारे पास भी पैसे हो तो लाइक हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कुछ लेसन्स लर्न करते हैं हमारे लाइफ से. तो उनकी एक स्टोरी है जो हमें बताया था, तो आई वॉज लुकिंग फॉर एंड लेट मी शो यू कि जस्ट लाइक हियर अभी मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ, तो सेम चीज ये उनके साथ हुआ था. तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. अंकिता
उठो ना, गेस्ट आ गए। उठो उठो जल्दी चलो। आइए आइए। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. Thank you बच्चों. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. चलो 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 चलो, दीदी के साथ गेम खेलो। चलो चलो। हाय। सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। तुम हमारे साथ नहीं खेलोगी? तो तुम गेस्ट हो। तुम्हारा नाम हैप्पी बर्थडे। नहीं, मेरा नाम दीप्ति है। आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे यानी जन्मदिन। तुम्हारा जन्मदिन कब है? मुझे नहीं पता। ये बर्थडे हम जैसे अनाथ को नहीं होता है। हमारे माँ और बाप नहीं है ना। तुमने कभी जन्मदिन नहीं मनाया? वाओ, दैट्स सो सैड। ये सैड क्या है? चलो सबके साथ गेम्स खेलते हैं। Happy birthday, dear Deepti. Happy birthday to ओके, सो दिस वाज पर्टिकुलरली कि हाउ हमारे जो फाउंडर है समय गड़ा, उन्होंने इस तरह से फाउंड किया कि लाइक वो अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट करने एक ऑर्फनेज में गए, वेयर उन्होंने इस चीज को देख करके सेलिब्रेट किया लाइक ही इज डूइंग अ गुड डीड, एंड उन्होंने केक कटिंग की। फिर जब वो वहां से वापस आए तब उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो चीज सेलिब्रेट किया, गिफ्ट्स मिले, प्रेजेंट्स मिले, केक खाए, पर वो चीज सेम जो है वो उन ऑर्फनेज बच्चों को नहीं मिलता। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने उस दिन से डिसाइड किया कि यस, नाउ ही विल ओपन एन एनजीओ। तो दिस वाज द रीजन। नाउ लेट्स मूव कि लाइक बेसिकली इस एनजीओ में हमारा 2 प्रोजेक्ट पे मेन फोकस है। पहला प्रोजेक्ट किताब और दूसरा है प्रोजेक्ट सारथी। तो व्हाट प्रोजेक्ट किताब इज बेसिकली कि ये 3 पिलर की बेसिस पे बना है, वेयर द फर्स्ट इज मेंटल वेलबींग, सोशल इमोशनल लर्निंग एंड तीसरा एकेडमिक लर्निंग। तो एकेडमिक लर्निंग तो जरूरी है जो कि 1 to 18 ईयर्स वालों के लिए। तो एकेडमिक लर्निंग के साथ मेंटल वेलबींग, टीम वर्क उतना ही ज्यादा जरूरी है कि बच्चों को उनके स्किल्स के बारे में पता चले, व्हाट दे शुड डू, व्हाट दे शुडंट, वो किस चीज में वो टैलेंटेड है। सेकेंडली, जो चीज में करती यहाँ पे जस्ट लाइक उन्होंने मोस्टली वो लोग ना टीम वर्क के बेसिस पे बच्चों से काम करवाते हैं कि वो कैसे कंडक्ट करे इन अ ग्रुप, बिकॉज अगर हम ह्यूमंस नॉर्मल भी बात करें तो ये टीम वर्क सबकी बस की बात नहीं होती है, बिकॉज देयर इज लाइक डिफरेंट नेचर लोगों में आ जाता है कि दे शुड बी अहेड, बट हियर दे मोस्टली ट्राई कि सब इक्वल रहे। नो वन इज किसी को भी ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ रही है कि उसके पास ज्यादा उसके पास कम, सबको इक्वालिटी एंड जितनी ज्यादा हो सके बेसिक डेवलपमेंट से चीजें सिखाई जाती हैं। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लाइक ऑल माई विशेज आर फुलफिल्ड, एंड एक बच्चा बोलता है कि व्हाट इज अ विश,
तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप हैं, तो व्हाट वी से कि अगर मान लो कि हमारी कोई बुक्स गुम हो जाए या कॉपी लिखते लिखते भर जाए, तो व्हाट वी डू, वी आस्क आवर पेरेंट्स कि हेलो पापा आप प्लीज बुक लेते आइएगा या कॉपी लेते आइएगा, मेरी भर गई। बट वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, व्हाट दे विल डू, दे विल, वो तो बोलेंगे कि भाई हमारे पास तो कोई किताब खरीदने वाला ही नहीं है, हम किस में कॉपी भरेंगे, ये चीज तो उनके माइंड में आएगी। फिर एक बच्चा बोलेगा कि आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन स्किल डेवलपमेंट एंड वॉन्ट टू नो व्हाट इज स्पेशल फॉर मी इन मी। तो इस वजह से हमें पता है कि हम अच्छे स्कूल्स बच्चों को क्यों भेजते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप को भी पता होता है कि अगर वो अच्छे स्कूल जाएंगे तो उनके अंदर स्किल्स डेवलप होंगे, वो एक्टिविटीज में पार्ट लेंगे, उनको पता चलेगा कि वो किस चीज में स्पेशलाइज्ड है। तभी हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना कि हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा गाता है, हाँ मेरा बेटा बहुत अच्छा लिखती है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि वो हमारे पेरेंट्स देते हैं। बट अगर ये जो बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे कि ये स्किल डेवलपमेंट होता क्या है, क्या ये सिर्फ स्कूल में ही मिलता है, कोई खरीदने की चीज है? तो उन बच्चों को कौन समझाए कि ये चीज उनके अंदर भी है, बट ये चीज उन्हें कहाँ मिलेगी, राइट? अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी सर्दी हो जाए या फिर खांसी हो जाए, तो या तो अम्मी आपकी दवाई खिलाती है या एकदम डांटती कि खबरदार जो बिस्तर से उठी जब तक कि ठीक नहीं हुई, राइट? बट वॉट अबाउट देम जिनके पास कुछ पता ही नहीं कि व्हाट दे हैव टू डू, उनको दवाई के बारे में क्या, उनको तो बस लगेगा कि बस लपेट लपाट के सो जाए। एंड मोस्टली वी सी कि लोग बीमारी होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते, जिनको कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता, तो वो जाएंगे किसके पास, राइट? सो दिस वॉज द प्रोजेक्ट किताब। और इधर प्रेजेंटली हमारा जो मुस्कुराहट फाउंडेशन है, इट इज वर्किंग इन 11 शेल्टर रूम अक्रॉस द 3 cities, एक्सपैंडिंग बाय द एंड ऑफ दिसंबर जो 2021 गुजरा, उसमें वो अब 7 cities में स्प्रेड हो चुके हैं 20 शेल्टर रूम के साथ। ओके फिर अब हम सेकंड आते हैं प्रोजेक्ट सारथी पर। हमारा प्रोजेक्ट किताब था फ्रॉम 1 to 18 ईयर्स वालों के लिए, और अब जो प्रोजेक्ट सारथी है वो 18 से लेके ऊपर एज वालों के लिए, क्योंकि हमारा लॉ बना था अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट। उनमें क्या था कि 2018 में ये लॉन्च हुआ, जिसमें था कि 18 ईयर्स के अबव बच्चों को ऑर्फनेज होम में रहना की परमिशन नहीं है। तो भाई अब रहने की परमिशन नहीं है लोगों को, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो उनको अब भेज देंगे कि जाओ तुम्हारा काम हो गया तुम भीख मांगो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। तो व्हाट दे चूज की प्रोजेक्ट साथी में दे विल इनिशिएट दोज चिल्ड्रेन टू ब्रिंग आउट देयर टैलेंट। उनका एम है कि आइडेंटिफाई करना और उनको जॉब के लिए सिक्योर करना, वो अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना जिसकी सबसे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है अभी। जस्ट लाइक अगर आप सुनो नॉर्मली तो नेटवर्क मार्केटिंग इज वेरी कॉमन अमंग एवरीवन। तो ये सारी चीजें हैं, वो लोग जॉब रेडीनेस के लिए प्रिपेयर करते हैं, जिसमें सबसे पहले बच्चे का सेल्फ अवेयरनेस होता है कि वो जाने कि कब कहाँ किस बुराई कौन सी बुराई आ सकती है, चैलेंजेस, सोचने की क्षमता कि कब किस सिचुएशन में किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए, उनको जॉब के लिए प्रिपेयर कराना, उनको सोशली इमोशनली लर्निंग के बेसिस पे स्ट्रांग बनाना, उनको फाइनेंशियली लिटरेट बनाना और इंटरव्यू स्किल्स डेवलप करना। अगर जिस बच्चों के माँ बाप ना हो तो वो बच्चे ये सब कैसे सीख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अस, जो हम अपने माँ बाप के घर में बैठे बैठे सीख रहे हैं, वो भी सीख सकते हैं, बट ओनली इन द कंडीशन कि अगर हम चाहें तब। एक एक करके इफ वी स्टार्ट विथ 1 person, तो सोचो आपकी 1 person से अगर हम मिला करके कुछ भी किसी भी तरह से उन्हें हेल्प करे, तो फ्रॉम वेयर टू वेयर दे कैन रीच। एक होता है कि लाइक ठीक है, अगर हमारे पास माँ बाप है एंड 18 ईयर्स की हो गई बच्ची, तो चलो इनकी शादी करा दो, बट फॉर नाउ जैसे ये बच्चे हैं तो व्हाट दे विल चूज, आजकल के बच्चों में मोस्टली वी विल सी दैट दे वांट टू गेट अ जॉब। तो व्हाट दे डू, दे वोंट प्रेफर कि भाई हमें जॉब चाहिए, तो दे वांट अ लेसन कि भाई कोई हमें सिखाए। एंड इफ वी आर वर्किंग इन एन ऑर्फनेज जहाँ पे हम जानते हैं कि बच्चों को सब कुछ सिखाया जाता है विद डिटेल टू डिटेल, देन व्हाई नॉट टू कंट्रीब्यूट इन दैट। ओके जस्ट लाइक अभी रिसेंटली पायलट जॉब हमारा चल रहा है, जिसमें कि 70 बच्चों को गाइड किया जा रहा है।
इसमें बेसिकली जॉब रेडीनेस के बारे में बताया जा रहा है उन्हें, फिर कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग द कोर्सेज, एंड कोर्सेज में बेसिकली लाइक यू नो कि लाइक व्हाट एवर दे हैव इंटरेस्ट इन, तो उनको वो प्रोवोक करके उसी फील्ड में भेजा जा रहा है। फिर उनको मेंटरिंग एंड स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी दी जा रही है। एंड बेसिकली वी सी कि न्यूज़पेपर में मोस्टली व्हाट वी सी कि जो बच्चों के माँ बाप नहीं होते, भाई ये टॉपर है, टॉपर के माँ बाप नहीं होते, ऐसी ऐसी खबरें बहुत हमने सुनी होंगी। हाउ? बिकॉज फैसिलिटीज उनको नहीं मिलती है, बट दे नो कि कौन सा रास्ता उनको लेना है, विच पाथ दे नीड टू टेक, एंड कैसे, बिकॉज उनको कोई गाइड करे। तो गाइड में कैसे, गाइड करने वाले के लिए है वहां पे, बट व्हाट वी कैन डू सिटिंग एट हर होम, हम एक बिस्तर पे कंबल में ओढ़ के कितने लोग बैठे होंगे, बट जस्ट बाय हेल्पिंग देम, बाय गिविंग समथिंग जो सिर्फ हम ही लोग दे सकते, तो उनसे कितनी सारी हेल्प मिल सकती है उनको। जस्ट लाइक यहाँ पे एक प्रेजेंटली बच्चे की बात करते हैं, आशु नाम है इसका, ठीक है। तो ये पिछले 3 साल से प्रोजेक्ट किताब में काम कर रहा है, एंड दिस किड हैज डन अ माइंड ब्लोइंग जॉब। स्टार्टिंग में इसके पास ना उसे बोलना अच्छा लगता था, और ना ही उसकी बेसिक डेवलपमेंट थी किसी भी सब्जेक्ट्स में। बट जैसे हमने इसका ध्यान रखा, इसका एकेडमिक सेशन के साथ साथ स्किल्स इंप्रूवमेंट किया, फिर उसके बाद अभी वो 10th में है, बट ठीक है। अभी मैं इसका आपको मार्क्स दिखाती हूँ, लाइक यू विल बी शॉक्ड। एक बच्चा जिसका कुछ ठीक नहीं था, नाउ ही स्कोर्ड 8.5 आउट ऑफ 9, देन 15/20, एंड ऐसे ही मार्क्स उसने स्कोर किए। इट्स गुड, राइट? जब मतलब दिस इज रियली वेरी गुड, ठीक है। अभी जस्ट लाइक मैं बात करती हूँ, नाउ लेट्स सी कि उन्होंने हमें ये भी बताया, जो हमारे डायरेक्टर हैं, तो इट्स समथिंग अबाउट कि ही वाज ट्रैवलिंग, तो ट्रैफिक लाइट में के पास उन्होंने देखा कि एक बच्चा था, तो ही वाज बेगिंग, तो उन्होंने उसके फेस पे ऐसा मार्क देखा, तो सेम चीज उसके भाई के भी फेस पे था। तो उन्होंने उसको बुलाया एंड ही जस्ट आस्क्ड कि ये क्या है, व्हाई इट इज डन हियर। तो फिर उनको बाद में पता चला कि उन बच्चों को एज अ जॉब की भीख मंगवाया जाता है। तो समहाउ ही मैनेज्ड, एंड उन्होंने उन 2 बच्चों को ऑर्फेनेज होम में लेकर के आया, एंड फिर उसके बाद उन्होंने उसका ख्याल रखना शुरू किया। तो अगर इफ एज अ ह्यूमन हम लोग उनके साथ रहे, उनकी हेल्प करें, तो मुंबई जैसे शहर में वी नो कि कितनी सारे गलत काम होती हैं उन बच्चों के साथ। अगर किसी को भी पता चल जाए कि उनके पेरेंट्स नहीं है, दे आर किडनैप, दे आर सोल्ड, दे आर अलाउड टू बेग, और वी कैन डू नथिंग एक्सेप्ट देन सीइंग कि हाँ इनका तो बिजनेस चल रहा है, इनके फेस पे मार्क है। तो this is not like satisfying as a human, right? Okay, so now the question is how we can help. So the only way we can help by sitting here is by funding, right? So funding is, I mean, I know कि आपके mind में बहुत कुछ questions आए होंगे related to funding, so let me be clear. If you it's according to you that how much you want to give as you want to help. तो there's like अगर आप कुछ भी फंड दो, आई विल शेयर यू अ लिंक जिसमें कि डैशबोर्ड प्रेजेंट होता है, एंड दैट डैशबोर्ड शोज कि आपका उस बच्चे पे कितना किस हिसाब से खर्च हो रहा है। लाइक इफ यू फंडेड सम अमाउंट ऑफ मनी, तो इट विल बी शोन कि आपका किस बच्चे पे खर्च हो रहा है और किस किस चीजों पे खर्च हो रहा है, विद ईच एंड एवरी डिटेल। योर फंडिंग विल नॉट गो एनीवेयर कि हाँ भाई फ्रॉड है, पैसे ले लिए, कहाँ गए कुछ पता नहीं। नो, एवरी डिटेल इज बीइंग देयर, राइट? सो दिस इज द थिंग, एंड नाउ लेट मी शो कि ये हमारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, and there is nothing like you can feel unsafe. And as than that, if you want more proof, then you can text me personally. I am available to answer all your questions. So this is the human rights of the children कि कितने सारे बच्चे हैं जो ऐसे तरसते हैं कि like to glance कि अगर हम अडॉप्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनकी हेल्प तो कर सकते हैं ना, एटलीस्ट वी कैन ब्रिंग स्माइल ऑन देयर फेस. So if not us, then who? If not now, then when? And let me show you, like I got a donor जिसने मुझे फंड दिया and I'm very grateful. So देखिए आपको ऐसा होगा कि आप जो भी फंड दोगे, जो लिंक शेयर करूंगी तो ये मेरे पास आएगा in this way कि इतना आपने डोनेट किया एंड डायरेक्ट इट विल गो टू द समय मुस्कुराहट फाउंडेशन.
So this was all about my funding, and if you have any questions, then please unmute yourself and ask me some questions. किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप म्यूट कर बोल सकते हो अनम्यूट करके. Okay, so I would like to speak something. Yes. Okay, so since आपने बहुत अच्छा presentation दिया, first of all. Second, Thank you. आप जो जिस भी institution या government NGO से आप जुड़े हुए हो, मुझे पता नहीं था, लेकिन but yeah, now I got to know. But yeah, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो इस चीज के लिए, and I'm Thank really you. helpful कि आप इस चीज में lead कर रहे हो और आप इस चीज को आगे लेकर के जा रहे हो हमारे शहर से. Okay, so मैं इस पे बोलना चाहता हूँ कि सिंस ऑर्फनेज हमारा टॉपिक है, तो मैं भी कुछ अपनी इनसाइट्स रखना चाहता हूँ. तो लुक एट द आयरनी, मतलब जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, चाहे वो आप मतलब वेलबींग फाउंडेशन से बिलोंग करते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो आजकल ड्रॉप आउट हो रहे हैं और मतलब एजुकेशन को ऑप्शन नहीं कर रहे हैं और जाकर के कहीं और मतलब कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हैं या कुछ भी और कहीं और जाकर के इंगेज हो रहे हैं. और लुक एट द पीपल हु आर बेगिंग, और लुक एट द पीपल हु आर देयर इन ऑर्फनेज, और जो भी ऐसे सिचुएशन में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, दे नीड बेसिक एजुकेशन राइट नाउ, राइट? सो दिस इज द आयरनी हो रहा है कि चलिए हम एक साइड ड्रॉप आउट होकर के एजुकेशन, कुछ लोग प्रमोट करते हैं कि ठीक है एजुकेशन जरूरी भी नहीं है और हम लोग जाकर के कुछ ना कुछ सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं और इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं. बट उस चीज को भी पाने के लिए आप अगर ड्रॉप आउट भी हो, तो आप उस चीज को लेकर के एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन आपने ली है. तो बेसिक एजुकेशन में आपको बहुत सारी चीजें मिली हुई है. अगर फॉर एग्जांपल 10th तक किया हुआ है आपने या 12th तक किया हुआ है, तो 10th और 12th तक भी आपने जिस स्कूल से किया है वहां पे भी बहुत सारे आप लोगों से मिले हुए, बहुत सारे पीपल स्किल्स सीखे आपने, बहुत सारे इंटरैक्टिव स्किल्स सीखे आपने. तो वो सब चीज भी मैटर करती है. तो आई डोंट अग्री कि ठीक है ड्रॉप आउट को भी एजुकेशन नहीं जरूरी है. दिस इज रियली अब्सर्ड टू सी कि हाँ जो लोग ऐसे बोलते हैं. सेकेंड थिंग, सिंस आई थिंक फंडिंग तो ठीक है, फंडिंग तो एक अपॉर्चुनिटी है कि चलिए इस तरह से हम हेल्प आउट कर सकते हैं. बट आई थिंक देयर आर फोर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इस चीज को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारी कंट्री में. फर्स्ट इज बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, सेकंड इज गवर्नमेंट, एंड थर्ड इज इंडिविजुअल. बिजनेस एंड इंडस्ट्रियलिस्ट एग्जांपल देता हूँ कि व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, आई वाज स्टडीइंग इन कॉलेज. तो मैं बताता हूँ कि वहाँ पे जैसे आपने ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल दी ना, तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट में ना एक आई डोंट नो अगर आपने बलून्स का एक बलून देखा होगा जिसके बलून्स में बहुत सारे लाइट्स होते हैं अंदर में. आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट. तो वो बलून, तो मैं जाकर के वहाँ पे बलून उस बच्चे से जाकर के उस बलून को लिया और मैंने बोला कि इस बलून का कॉस्ट कितना है. तो उसने बताया कि 200 रुपए इस बलून का कॉस्ट है. तो मैंने बोला इस 200 रुपए का कॉस्ट है, मतलब आप 200 रुपए में बेच रहे हो बलून? तो उसने ना डिस्काउंट कर करके 150 में दे दिया. तो फिर जाकर के मैं इस चीज में फाइंड आउट करने लगा कि ये बलून कौन सी कंपनी बनाती है, क्या करती है, कौन ऐसा मतलब 150 में क्यों बेच रही है, मतलब एक बलून का ऐसा क्या है कि 150 में प्राइस हो रहा है. तो मैंने जब सब कुछ फाइंड आउट किया ना, तो वहां पे पता चला कि ये जो बलून वाली कंपनी है ये खुद भी एक सेक्शन 8 कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है और एनजीओ वाली कंपनीज है. और ये क्या करती है ना कि जो भी बेगर्स को ये चूज करती है कि आप इस चीज को लेकर आप इस चीज को सेल करो, वो पर बैलून 100 रुपीज उसे देती है. कैन यू इवन इमेजिन 150 के प्राइस में दे आर कीपिंग, सपोज इवन 10 रुपीज की कॉस्ट है, दे आर कीपिंग 40 रुपीज एंड 100 रुपीज टू दैट किड. दिस इज लाइक रियली ग्रेट कंट्रीब्यूशन. इट्स लाइक इवन इफ अगर वो पूरे दिन में 5 बलून भी सेल आउट करते हैं, वो बच्चा पूरे दिन में 5 बलून भी सेल आउट करता है, तो ही इज अर्निंग 500 राइट. सो 500 रुपए बच्चे जो अर्न कर रहा है, दिस इज हाउ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन और छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हेल्प आउट कर सकते हैं अपने बिजनेस या अपने प्रोडक्ट्स को भी ग्रो करके और उनके भी कंट्रीब्यूशन से हेल्प करके. सेकंड थिंग, गवर्नमेंट ऑब्वियसली ओके मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि गवर्नमेंट टू बी ऑनेस्ट सीरियसली गवर्नमेंट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज गवर्नमेंट को rather बहुत कुछ करना चाहिए, बहुत कुछ ऑब्वियसली करना चाहिए जिस लेवल में दूसरे जगह में होते हैं. इनफैक्ट हमारे शहर में कुछ, हमारी कंट्रीज में कुछ भी नहीं होता. टू बी ऑनेस्ट आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन. कुछ भी नहीं होता बिकॉज जितने पैसे हम जितने टैक्सेस जितने
जितने इनकम टैक्स, जितने जीएसटी कलेक्शन होते हैं उसके हिसाब से हम कुछ भी नहीं देते हैं। ओके, सो थर्ड इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आई थिंक ये स्कूल्स में और कॉलेजेस में और ये इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे एजुकेशन कराया जाता है, यहाँ पे हर एक इंसान को हर एक कॉलेज में एक एक प्रोजेक्ट होना चाहिए ऐसा, जहाँ पे जैसे हमारे हर एक एमबीएज में या फिर अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में डेजर्टेशन होता है, उसी तरह एक सोशल डेजर्टेशन होना चाहिए, सोशल प्रोजेक्ट जहाँ पे हम इन चीजों पे काम कर सके, जा करके इन चीजों पे जा करके लोगों को हेल्प आउट कर सके, चिल्ड्रन को या फिर ऑर्फनेज। क्योंकि ये सारी चीजें अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में होती है, क्योंकि मैं जाकर के वहाँ पे मैं देखा हुआ, वहाँ पे मैं पढ़ा हुआ, तो मैं जानता हूँ ये आईएम्स में होते हैं, ये आईआईटीज में होते हैं, तो मैं जानता हूँ, वहाँ से मैं जुड़ा हुआ, तो मैं जानता हूँ वहाँ पे जाकर के होते हैं ये सारी चीज। तो मैं सभी कॉलेजेस में होने चाहिए, सभी जगह होने चाहिए, सो दैट यू नो देयर आर सो मेनी पीपल हु कैन यू नो हेल्प आउट एंड, और ये सारे सोशल सारी चीज जा सकते हैं। और बोलूंगा मैं कि सिंस ये चिल्ड्रन या फिर ये जो जितने भी यूथ है, हम सारे लोग हैं, जितने भी लोग हैं, हम सारे एसेट ऑफ द कंट्री है, राइट? तो हम लोग अगर इस चीज में नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि ये चीज का कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। और वी कांट रिलाई entirely to the government. We also have to look at ourselves and individually, and we can for any reason, for anything what we can contribute, it will be a great help for us. So yeah, this ओके एंड सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है विवेक, एंड ये कि लाइक अगर गवर्नमेंट से नहीं तो तभी तो एनजीओ खुला है, दैट इज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इतने सारे खुल गए हैं दैट वी कैन हेल्प। वी आर, मतलब मुझे किसी ने बुलाया नहीं कि यू वांट टू ज्वाइन और नॉट, आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ इट, आई वांट टू हेल्प देम। मैं मुंबई नहीं जा सकती बट आई कैन, मतलब मुझसे जो होगा आई विल डू। एंड दे सेड मी कि लाइक यू कैन विजिट देयर यू एज अ वॉलंटियर, क्योंकि वो किसी को पूरा डिटेल नहीं बताते ना व्हाट एग्जैक्ट लोकेशन इज, बिकॉज अगर उन्होंने बताया तो ऑफ कोर्स कि वो बच्चे डर जाएंगे, एवरीवन कम्स टू विजिट देम। तो ये सारी चीजें, एंड लाइक and they also said me कि like they are providing a tutors, कि अगर मैं या आप में से कोई भी एज ए ट्यूटर्स पढ़ाना चाहते हो तो दिल्ली में, मुंबई में, we can go and teach them। वो छोटे छोटे बच्चे, like this video I showed you, बेबी शार्क डू, तो लाइक ऑनलाइन इंटरेक्शन भी हो रहा है एंड बच्चे आर लर्निंग। दैट्स द बिग पार्ट कि हम अपने यूथ को पढ़ा रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि हम खुद भी पढ़ रहे हैं, उन्हें भी पढ़ा रहे हैं, एंड हम उनके साथ साथ बढ़ रहे हैं। लाइक जो पॉवर्टी हम देख रहे हैं ना, वो हमारे हाथ में है आफ्टर गवर्नमेंट, कि हमसे जो हो सकता है वी विल डू। वी मतलब आई एम जस्ट अमेज्ड, एंड लाइक अभी तो लाइक आई एम इन अ ब्रेक इन माय स्टडीज की लाइक आई विल टेक एडमिशन, तो टिल देन आई एम लाइक फाइंडिंग माय वे टू अर्न। और मेरी इतनी ज्यादा इनकम नहीं है अभी, बट स्टिल आई वांट टू कंट्रीब्यूट व्हाटएवर आई गेट टू दीज चिल्ड्रन। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट फॉर मी कि आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं इस चीज में ये चीज बोलूंगा कि आई डोंट नो, सिंस आप हैंगआउट में पहली बार आए थे, तो मैं बताता हूँ कि हैंगआउट में 3 वीक्स या 4 वीक्स पहले ना हमने इसी तरह के सोशल इनिशिएटिव लिया था, और हमने फॉडर नाम करके एक CSR फॉर्म किया था, और हमने वहां पे जाकर के स्ट्रीट एनिमल्स और छोटे बच्चे और जितने गरीब लोग हैं ना, उनको जाकर के क्लोथ्स, फूड और बहुत सारी चीज जाकर के हम लोग प्रोवाइड। और हमने ये चीज को पोस्टर लगाया था, और ट्रस्ट मी बहुत सारे लोगों ने पैसे दिए थे, बहुत सारे लोगों ने हमें मतलब सीरियसली पैसे दिए थे, और उस पैसे को यूटिलाइज करके हमने फूड खरीदे, मतलब बहुत सारे एनिमल्स के लिए वेजिटेबल्स खरीदे, फिर खरीदे डॉग्स वॉग्स के लिए, सभी चीजें हमने ये सभी चीज किया। और दूसरी चीज, उसके बाद जब हमने ये फॉर्डर कंप्लीट किया ना, ये CSR कंप्लीट किया, तो काफी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप नेक्स्ट टाइम कब ये जो सोशल इंटरैक्टिव कर रहे इनिशिएटिव ले रहे हो, आप ये नेक्स्ट टाइम कब से हो रहा है? तो मैंने उनको बोला कि नेक्स्ट टाइम हम मतलब छोटे छोटे बच्चों के लिए करेंगे। और मैंने बताया जब लोगों को कि इस बार जो हम करने वाले हैं, इस बार हम मतलब छोटे मतलब विल पिक ओनली 5 स्टूडेंट, ओनली 5 पीपल, 5 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट्स में रहते हैं ना, उनको 5 बच्चे को लेंगे, 5 बच्चे को हम अपनी लाइफस्टाइल देंगे। I mean, the way we live, the way we enjoy our beautiful life, हम अपनी लाइफ उनको वो जीने का मौका देंगे। How we are going to do that?
हमने सोचा कि जितने भी पैसे आएंगे उससे हम उनको मतलब बहुत सारी जगह घुमाएंगे जहाँ पे उनको जाना अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट थिंक कि कोई कोई रेस्टोरेंट्स में जाना अलाउ होता है, वैसे छोटे छोटे बच्चों को अलाउ होंगे, तो हम उनको वो रेस्टोरेंट्स में जाके खिलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डोमिनोज में उनको डोमिनोज में आप बाहर देखोगे जाकर के, उनका भी सपना होता है यार कि मतलब हम भी जाकर के वो चीज को, वो ब्रेड को ले, उस पिज्जा को खाए। सो वी आर गोइंग टू गिव देम एग्जैक्टली दैट लाइफ व्हिच वी आर गोइंग टू लिव, उनको जाके मूवी दिखाना। सो वी विल श्योरली कम विद दैट फॉर श्योर। बट या इस तरह हम एटलीस्ट हर एक इंडिविजुअल अपने अपने शहर को अगर कंट्रीब्यूट कर सकता है ना, तो वी आर लाइक इस तरह से हम स्मॉल स्केल पे बहुत आगे तक जा सकते हैं। राइट, यस, दैट्स सो ग्रेट यार, तुम्हारे इनसाइट सुनकर काफी अच्छा लग रहा, लाइक द वे यू स्पोक। और बैंगलोर वाली स्टोरी भी आपने बताई, वो भी काफी अच्छी थी। अभी जो आपने डोमिनोज वाला बताया ना किस्सा, तो इसे वही मेरे को बात ट्रिगर कर गई। जैसे जो मदिया जिस एनजीओ के बारे में बात कर रही है, तो उसके ओनर जो स्टार्ट किया था, लाइक द वे यू नो तुमने बताया कि वो डोमिनोज वगैरह में कभी जा नहीं सकते, अजीब लगता है। तो वो एक छोटा पार्ट हो जाता है, एक ना कि एक बार वो चले गए, तुमने एहसास कमतरी वाली चीज एक होती है ना कि हाँ चलो ठीक है, तुम पहले जा नहीं सकते थे ना, अब तुमने उसको लाइक आई एम नॉट सेइंग पॉइंटिंग आउट, आई एम जस्ट सेइंग अ वे ऑफ एग्जांपल। ठीक है, क्या एक बार अंदर जाने का एहसास होता है कि लो ये चीज थी जो हम लोग मिस कर रहे थे, यू नो द थिंग अबाउट कि हाँ जिंदगी में मुझे मिला नहीं, टेम्परेरी है। तो दैट इज गुड कि दैट वाज अ गुड जेस्चर कि तुम्हारी तरफ से जैसे तुमने किया, राइट। बट लाइक एक अगर इसी चीज को इस तरह के मेंटालिटी वाले लोग एक जगह हो करके, लाइक तुमने अपना छोटा पार्ट किया, राइट। अगर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा जैसे आदमी बनता है, तो व्हाट हैपेंस कि मैनेजमेंट स्किल्स, जैसे तुमने भी अपनी कंपनी बनाई है, राइट, मैनेजमेंट स्किल्स, एचआर, तो यू नो यू हैव द आइडिया कि ये चीज कैसे काम करती है। तो एवरीथिंग कुछ भी को मार्केट में इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइक व्हेन आई से मार्केट आई मीन जो तुम्हारा पर्पस है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड टू बिल्ड अप अ टीम, और उसको मैनेज करना पड़ता है। एंड जब ये सब चीजें बड़ी बड़ी चीजें वर्ड्स आती है ना, मैनेजमेंट, टीम, एचआर, व्हाटएवर, तो वहां पे फाइनेंस जुड़ जाता है। अब फाइनेंस जब जुड़ता है तो सब पीछे हट जाता है, करेक्ट। शुरू में सब क्या यार सो मच एम्पैथी अबाउट देम, अरे बेचारे लोग, हाँ सही बात है, बात तो सही है ऐसा, बट नोबडी कम्स अहेड कि चलो ठीक है, हम इसका रूट कॉज क्या है, हाउ टू पिन पॉइंट द रूट कॉज, और उसको हम लोग कैसे करेंगे कि लाइक मैं समझा कि वेयर दैट ओनर ऑफ दैट एनजीओ इज कमिंग फ्रॉम, लाइक कि हाउ टू किल दैट रूट कॉज ऑफ इट। तो अगर एक मैनेजमेंट है जो कि पूरा बिल्डअप करने की कोशिश करती है, उनका स्टार्ट टू एंड तक, जैसा वो किताब वाला बताया ना, फर्स्ट प्रोजेक्ट है 1 से 18 तक, तुमने उसमें बच्चों को उस तरह से मैच्योर बनाया। एंड फिर 18 साल के बाद जो तुम्हारा जुवेनाइल एक्ट वाला जो लॉ के बारे में बताया मदिया ने, तो उसके हिसाब से तुम ऑर्फनेज में रह नहीं सकते हो, बट ऑर्फनेज के बाहर जाने के बाद तुम उस हिसाब से स्किल बना दिया जाता है, तुमको जॉब के हिसाब से प्रोफेशनल बनाया जाता है, ताकि तुम एक अपने पैर पे खड़े हो सकते हो, रादर देन कि तुम किसी और के भरोसे पे करते हो। तो दैट वाज प्रीटी नाइस, वेरी प्रीटी इम्प्रेसिव कि तुम सिर्फ बच्चों का खाने पीना, एजुकेशन तो ठीक है, वो सब मतलब वो मोस्टली सब लोग करते हैं, बट जो मेन चीज होता है कि तुम खुद से अपना ब्रेड अर्न करने की जो काबिलियत होती है वो उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करते हो। तो दैट वाज प्रीटी मच द टचिंग पॉइंट दैट आई फेल्ट इन ऑल ओवर द प्रेजेंटेशन, कि उनको अपने पैर पे खड़ा करने की तुमने काबिलियत दे दी ना, तो अब तुमको पैसे देने की जरूरत नहीं है, वो खुद से अपने पैसे कमा सकते हैं। फिर वो दे विल बी इन दैट पोजीशन कि वो अपने जैसे और बच्चों को भी हेल्प कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो दैट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट, आई लाइक्ड इट वेरी वेरी मच मदिया, कि तुमने इसके बारे में बताया था, जो तुम्हारे प्रोजेक्ट सारथी है, सेकंड प्रोजेक्ट, आई लव्ड इट वेरी मच। तो गुड वर्क, ग्रेट प्रेजेंटेशन भी, विवेक भी काफी अच्छा था। एंड पीपल लाइक विवेक वगैरह है ना, तो तुम लोग मिल करके भी यू नो ब्रेनस्टॉर्म करके आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स
और हाँ इन चीजों पे वर्क, क्योंकि बिकॉज विवेक हैज अ बैकग्राउंड अबाउट इट, जैसे उसने बताया अपने कॉन्वर्सेशन में, तो ही हैज वर्कड ऑन इट, तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ हिम, और ये सब कोलैब में काफी कुछ हो सकता है, यू गाइस कैन वर्क ऑन दिस, राइट विवेक? मैं श्योर 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 माज, ओके। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा माज, आपने सिंस बहुत अच्छा पॉइंट रखा, सिंस कि जब फाइनेंस की बात आती है तो काफी लोग पीछे हो जाते हैं। तो मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं इस पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि जब मैंने ये पोस्टर डाला ना, कि आई थिंक मैं ना हमेशा जनरलाइजेशन में बिलीव करता हूँ, और पूरी दुनिया जनरलाइजेशन में बिलीव करती है। सी अगर अगर दुनिया में अगर 1 लाख लोग है ना, अगर आप 1 लाख, अगर आपके टारगेट ऑडियंस है, अगर आपके 1 लाख ऑडियंस अगर आपके पोस्टर को देखते हैं कि आप अगर कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो और आप स्टार्ट कर रहे हो, यू शुड ओनली पीपल, दैट्स ऑल। अगर वो 10 पीपल अगर आपको पैसे दे रहे हैं और आपके 10 पीपल से 1,000 रुपए भी आ रहे हैं ना, फॉर दैट 1,000 रुपीज वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई टेल यू, गिव यू एन एग्जांपल, ओके। जब मैंने पोस्टर डाला, एंड आई डोंट थिंक सो कि हमने ये टाइम भी निकाला, हमने सोचा कि चलो आज आज पोस्टर डालते हैं, कल करेंगे जितना होगा। जैसे अगर ना मैं अपने पैसे लगा दूंगा, मैंने इतना तक बोला था, तो मैंने अपने पैसे लगाऊंगा। ट्रस्ट में, जैसे पोस्टर डाला ना, यू कांट इवन इमेजिन कि मैंने बोला ना कि पूरे, अगर हमारे ऑडियंस अगर 500 लोगों की ऑडियंस है, हमारे फॉलोअर्स है, तो एक 1,000 रुपए ट्रांसफर किया। एंड हिज नेम वाज विदिशा आंटी, ओके, शी इज एन आंटी, ओके। वो हमारे ग्रुप में आई हुई है, और 1,000 रुपए दिया, ट्रस्ट मी। और वो 1,000 रुपए मुझे जब मिला, आई वाज शॉक्ड। मतलब मैंने अपनी बहन को, अपने भाई को भी बोला, यार 1,000 रुपए दे रहे हैं, मतलब आई मीन सीरियसली यार, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे रहे हैं क्या, कि इस चीज को आप अच्छे तरीके से लेकर के जाइए। तो आई थिंक, और दूसरी चीज ये भी है कि मैंने अपने ग्रुप में, तभी हमारे ऑलमोस्ट अराउंड 35 to 40 लोग थे, तो मैंने ये चीज बोला कि कॉन्ट्रीब्यूट 10 रुपीज, आई नो, ओके, 10 रुपीज। मैंने उनको मैक्स समझाया। See, if you contribute 10 rupees and we are around 40 people, okay, we are contributing around 400 rupees, right? And for 400, we can do something for one community at least, maybe for dogs, maybe for one children, maybe for 2 children, maybe for one particular community, right? So हमारे पास जितने आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम जितने लोगों तक एलोकेट करते हैं अपने रिसोर्सेज, वो बहुत मैटर करता है, चाहे मे बी इट इज अराउंड फॉर 500 रुपीज, क्यों ही ना हो। So this is this I run my finance, and I run how Hangout as well. So करेक्ट एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हो तुम। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब कुछ लोग, मैं हमेशा, मतलब आउट ऑफ अगर 50 लोग हैं, मैं हमेशा 5 लोग, मैं चाहता हूँ कि अगर 5 लोग भी, अगर कुछ लोग सीख ले या कुछ लोग जान जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर गिव यू एग्जाम्पल, अगर आपने मदिया ये सारे पोस्टर्स या ये जितने भी लोग हैं सभी जगह डाले होंगे, ऑब्वियसली सभी जगह डाले होंगे, बट आपके पास 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, सो यू शुड बी हैप्पी जितने लोग हैं उनके साथ मिलकर के आप लेकर के जा रहे हैं। डोंट फोकस ऑन एंटायर 500 लोगों को भेजा और 500 लोगों में से सिर्फ 10 लोग आ रहे हैं, इट्स लाइक 1%। डोंट फोकस ऑन 1%, फोकस ऑन 1% व्हाट यू गॉट, राइट? एंड उस 1% आप कितने आउटकम निकाल सकते हो, दैट इज राइट, दैट इज हाउ वी शुड गो ऑन। ओके, सो वैसे मैंने चैट पर ये लिंक भेज दिया है, यू कैन लुक एट इट, राइट? तो इधर आप लाइक यू कैन गिव योर फंड्स अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। इधर यू कैन अप्लाई माय कोड एंड डैशबोर्ड विल अपीयर हियर ओनली, जिधर आप देख सकते हो कि वेयर इट इज बीइंग यूज्ड एट व्हाट पर्पस, कि किस किस स्टेज पे किस किस पर कैसे कैसे यूज हो रहा है। एवरी डिटेल विल बी शोन इन द डैशबोर्ड। तो तो आप लोग ये लिंक कर लो, एंड इफ किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, दे कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, कि मैं उनको लिंक अपनी तरफ से एक बार दोबारा शेयर कर दूं। ओके, वन मोर थिंग मदिया, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंस आप भी पूर्णिया से हो, मैं भी पूर्णिया से, सभी को पूर्णिया से है, और हम लोग सभी को यूथ है। सो जैसे मैंने बोला कि अगर इस पर्टिकुलर सिटी के पर्टिकुलर यूथ अगर अपने सिटी पे फोकस रखे, तो आई थिंक हमें इंडिविजुअल उस सिटी को अच्छा बना सकते हैं। सो आई थिंक अगर हम लोग मिल करके कुछ कोलैबोरेट करके अगर लोगों को हेल्प कर सकते हैं, लोगों को इस चीज में, मे बी वी कैन कोलैबोरेट एंड वी कैन डू समथिंग सेम नेचर, और वी कैन मिल्लत ऑफ पूर्णिया, you have heard about that, Vivek?
I know. मैंने वो लोग हमारे पास मिलने भी आए थे हैंग आउट को Okay. और मतलब मैंने उनसे मैं मिला हुआ हूँ भी उनसे और मैं जानता हूँ आप लोग उससे जुड़े हुए हैं क्या? नहीं एक्चुअली मुझे अभी कुछ दिन पहले ही इसके बारे में पता चला ना। बिफोर मतलब इससे पहले तो मैंने मुस्कुराहट में लाइक एज एन क्या बोला, एज अ वॉलंटियर मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया था मुस्कुराहट में। देन लेटर मुझे पता चला अबाउट दिस, तो फिर आई विल लुक कि इधर भी करती हूँ उधर भी करती हूँ, तो सुन आई विल वर्क कि मैं उनसे बात करूँ जा करके एंड वी विल सी हाउ इट गोज। Sure. Okay, If you need Madhya, very good work. And Vivek also. thank you. तो विवेक भी अच्छा काम कर रहे हैं और दोनों हो सके तो दोनों करो मिलके। बट गुड प्रेजेंटेशन एंड कीप इट अप फ्रॉम गुड़गांव। विवेक, very good work. Thank you, ma'am. Thank you so much. I am a mother of 3 kids. Okay, I okay, think ma'am. you are like my son. Okay, yes, ma'am. Sure. You are doing very good work. Thank you, ma'am. ओके सो इसी के साथ इट्स ऑल डन फ्रॉम माय साइड। तो अभी और किसी को कुछ बचा है कहने को, लाइक एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग? ओके आई डोंट थिंक किसी को है, तो लेट्स एंड द मीटिंग नाउ। योर लिंक जो चैट में दिया हुआ है इट्स वर्किंग एंड आई जस्ट चेक्ड इट आउट, तो इट्स वर्किंग। तो आई लेट यू नो। और वो तो मेल पे मेरे को भी रिस्पॉन्स आ जाएगा ना, लाइक जब मैं लाइक डोनेशन डालता हूँ तो No, that response will be given to my mail and if you want to confirm तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज सकती हूँ। लाइक मुझे पता चल जाएगा कि किसने कितना दिया है, तो वो चीज मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर सकती हूँ। Is it in Gurgaon? Your NGO is in Gurgaon also? जी खालाजान, इट्स गुड़गांव नहीं पर दिल्ली में होगा। Okay. ठीक है। चलो, I'll do something. I'll give you some amount. I'll also do something. Okay, is there any possibility we can donate cash in a form or something like that? कैश का तो लाइक यू कैन गिव मी एंड देन आई कैन, जो कैश का अमाउंट है वो ऑनलाइन ही उनको पे करना पड़ेगा, यू नो कैश। या अगर मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं ऑब्वियसली उनको बता सकूं कि हाँ कैश ऑप्शन है या नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था। यू कैन कैश का ऑप्शन ये हो सकता है कि कैश लेके गूगल पे कर दो या फिर पेटीएम। हो सकता है। Okay, then thank you so much everyone for being a part of my presentation and listening to me. Thank you, Madhya. Thank you so much. Now I'm ending the meeting. Thank you, Madhya. Your presentation was really, very good. You were very confident, and I really enjoyed. And I will surely donate some amount because I was highly inspired by your presentation. Okay, thank you. So let's end the meeting now. Good night. Take care, all of you. Thank you so much guys for watching the video. I know it has been a long session on, like, to spend 52 minutes in a video is not so easy. So I'm really very thankful and I hope that what intentions I wanted to bring in the video has been clear to you people and you will think of it. So just I need your help. I can only ask for your help. The rest is on you. How you can help others, how you can satisfy, because all the things of satisfaction is already said to you. If you have still any questions, please do not bother and do ask me. I will be there replying all your questions in the comment section below. And yeah, if you like this, please share my channel, do like, subscribe. And for now, good night. Take care. Bye-bye.